Hello kids, welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. Today we are going to do some Olympiad level questions. So basically we are using the knowledge we have gained till now in this lecture, in this chapter actually, that is the electric current and its effects, right? So basically we were trying that questions, ठीक है, जितने भी questions होने वाले हैं उन सभी को हम try करेंगे, वो सारे के सारे जो है Olympiad based questions हैं. So we are just putting our knowledge into some use and we will be helping all the question in solving them. Alright, तो basically हम सभी questions को देखने वाले हैं. So get ready for that. I hope that आप लोगों ने अब तक revision कर लिया होगा और इस सारे questions आप खुद से try करेंगे पहले and then you will be watching the solution. All right, so you all know that we are dealing with the school examinations along with the competitive level, so that's why we are trying these questions so that we gain that knowledge कि भाई कॉम्पिटिटिव लेवल पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड स्पेशली हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो हमने लेक्चर में, जो हमने चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ी हो. सो इन दिस लेक्चर वी वर ऑल्सो लर्निंग सम न्यू थिंग्स एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, तो हो सकता है कुछ नई चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस आज मैं करवाऊँ. राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हर एक सोल्यूशन को जब आप देखोगे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा उसमें. Alright, that is the most important thing and that's why you should watch these lectures and try every question I'm giving you. Alright, if you want any DPP and study material, you can access them from our telegram channel. Alright, तो ये है हमारा telegram channel for the class 7. You have to write TTB07 in the search box of the telegram app. If you write this TTB07 then you will be getting the चैनल है ना, और उस चैनल को फिर आपको ज्वाइन करना होगा अपनी क्लास के अकॉर्डिंग. यू कैन ज्वाइन दैट, यू कैन एक्सेस ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल. ऑलराइट, तो उसके आगे हम चलते हैं. नाउ यू कैन सी दिस इज अ good team because this is my team actually. I am included in this team and we are all doing very much hard work for you all so that we provide you the quality lectures, all right, and make you able to crack the examination you never fight for, right? Maybe you want to fight the school examination and you fight for the rank 1, and maybe you want to fight the Olympiad 11 and you want to get that rank 1 in that also. So if you are thinking about that, if you are dreaming about that, then you should definitely watch these video lectures and definitely you should share this video with everyone and definitely make sure that your friends and you study from these. Alright, that is the most important thing. If you don't study, then who will going to attempt your examination, right? Now dekho, in accordance to that we have provided video classes for you all for free, right? But also we have provided some other inputs from us that is included in the package. So you need to go on the website www.talkingtextbooks.in. if you go on that website you will be getting on screen two type of packages. So the one is the full package including all the things, right? So that means you will be getting a comprehensive study material focused for a examination point of view, like the school examination and the Olympiad level. So you will be getting that. Also we have provided the free video classes and the live in the video classes basically, which are you getting for free, right? And the homework submission feature where you will be doing the homework from the study material and you will be submitting to us, and then you will be getting a bi-weekly quiz. You can attempt those quiz, you can get that knowledge, right? You will be going to do that twice a week, so it will be so much frequent. So that means you need to study along, right? Means you have to continuously study. And the last and the fifth feature is the periodic test papers. Basically you will be getting the periodic test papers so that you can get the idea of the final examination, the pattern of the final examination, the actual, you can say, number of questions or how to solve them, how to approach them, the time limit and all things. You will be getting that. Alright, so definitely if you want all of this you can definitely join our full package. Also you can join the test series if you are interested in testing only. Alright, in testing you will be getting recorded and live classes, periodic test papers, bi-weekly quizzes. So you can join that also, and if you are really serious about buying them you can use my code CY Live so that you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in.
Also remember that if you have any query regarding these packages and all, that how these things will be going to help you and how you should approach and why you should approach towards these, you can call us, and the number is 919549041111. You can call us on this number and all your queries will be resolved. Basically we will trying to do that. Alright, now it's the time for promise. Alright, so make sure that you do the promise. Everyone should do the promise. Promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. Basically 15 minutes a day. You have to revise 15 minutes a day. That is a good thing. Also remember that कि भले ही आज हमारा ओलंपियाड लेवल का जो है क्वेश्चंस का हमारा लेक्चर है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, बिकॉज यू नीड टू नोट डाउन एवरी क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न सम न्यू थिंग्स विद फ्रॉम एवरी क्वेश्चन, राइट. कुछ नई बातें हम लोग सीखने वाले हैं, कुछ नए तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. सो बेसिकली दीज लेक्चर्स, दीज क्वेश्चंस आर also included in the chapter, all right, so that you gain the knowledge how to approach any question which is out of your known things, all right. So basically we are going to do that, all right. So that is the main thing. Now let's move on to the Olympiad level question. This is the lecture 7 of electric current and its effect, basically, all right. So this is what we are going to do, just questions and all. So this is the question 1 on your screen. Do it, try it out, all right. Maybe some students figure it out, all right, and maybe कुछ बच्चे नहीं भी figure out कर पाए, all right. So do not hesitate and all, just go through with it. अगर तुम्हारा question गलत होता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, because this is the learning phase, all right. लर्निंग फेज में तुम्हारा क्वेश्चन अगर गलत होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लर्निंग फेज में अगर तुम्हारा क्वेश्चन सही होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, all right. You should learn and that's why you should solve this question. So the question is the magnetic field around a current carrying coil. We are talking about a current carrying coil. तो यहाँ पे एक करंट कैरिंग कॉइल है, दैट मीन्स हमने क्या किया, एक वायर को सर्कुलर फॉर्म में उसको रख दिया है एंड अ करंट इज गोइंग थ्रू दैट, ऑलराइट. तो दैट इज द करंट कैरिंग कॉइल. नाउ टेल मी कि क्या एक करंट कैरिंग कॉइल के चारों तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है क्या? ओके, देखते हैं. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेट्स से होता है, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है, आई विल बी टेलिंग यू बट आफ्टर दैट, ठीक है. अभी देखो ऑप्शन ए कहता है लास्ट फॉर 3 आवर्स. क्या वो सिर्फ 3 घंटे तक रहता है? लास्ट एज लॉन्ग एज करंट फ्लोज थ्रू इट, तब तक रहता है जब तक कि करंट फ्लो करता है. लास्ट टिल इट्स हाफ लाइफ पीरियड, क्या वो हाफ लाइफ पीरियड तक रहता है? इज परमानेंट, और क्या वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रहता है? तो आप अपने हिसाब से बताओ कि आपको क्या लगता है कि इन सभी ऑप्शंस में से एक्चुअल सही आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्या वो हमेशा रहता है, जब जब करंट जाएगा तब तब रहता है? रिमेंबर द इफेक्ट्स आई टोल्ड यू. मैंने आपको 3 इफेक्ट्स बताए थे करंट के. नंबर 1 मैंने आपको बताया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट, कि वायर हीटअप हो जाता है. मैंने आपको सेकंड बताया था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. केमिकल इफेक्ट में क्या होता है? वाटर ब्रेक्स अप होता है, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक्स अप हो जाता है जब हम उसके अंदर से H2SO4 मिलाकर इलेक्ट्रिक करंट को जो है फ्लो करवाते हैं. थर्ड थिंग इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड आई टोल्ड यू कि इसमें क्या होता है. इसमें होता है जब कभी भी एक वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया जाता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है. रिमेंबर द इलेक्ट्रोमैग्नेट. अगर तुम बच्चों को इलेक्ट्रोमैग्नेट याद होगा तो तुम इसका बिल्कुल सही जवाब बोलोगे कि भाई लास्ट एज लॉन्ग एज करंट फ्लोज थ्रू इट. रिमेंबर द इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से बनी हुई मैग्नेट, और उसमें क्या होता है, जैसे आप स्विच ऑन करते हो वो मैग्नेट बन जाती है, जैसे आप स्विच ऑफ करते हो मैग्नेट बनना बंद हो जाती है, राइट. तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तब रहता है वहाँ पे जब जब आप करंट फ्लो करवाते हो, ऑलराइट. सो भले ही वो एक स्ट्रेट लाइन हो जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से सर्कुलर टाइप्स में होता है जो पूरे वायर के, लेट्स से इफ दिस इज द वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से होता है. और इवन अगर आप इसको ऐसे भी मोड़ दो इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल तो भी यहाँ पर आपको चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है.
समझ में आई? तो हर एक वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जब कभी भी उसमें करंट जाता है, ऑलराइट, सिर्फ तभी जब करंट जाता है। जैसे आप करंट को ऑफ करोगे देयर वुड बी नो मैग्नेटिक फील्ड, ऑलराइट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्किट एलिमेंट? सर्किट एलिमेंट कौन नहीं है ये हमें पता करना है। ऑप्शंस आर बैटरी, वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टर। हो सकता है कुछ चीज़ों के नाम आपने नहीं सुने हो, है ना, तो फिर भी आपको बिल्कुल ध्यान से जाना है। मैंने जब तुम्हें सर्किट सिंबल बताए थे, है ना, सर्किट सिंबल बताए थे, तो मैंने किन किन चीज़ों के आपको सर्किट सिंबल बताए थे? सोचो, आप खुद से सोचो। सोचो मैंने आपको कौन कौन सी चीज़ों के सर्किट सिंबल बताए थे। देखो बैटरी, बैटरी एक्चुअली क्या है, यहाँ पर हमको बोला है सर्किट एलिमेंट, है ना। सर्किट एलिमेंट का मतलब हुआ कि ऐसे कुछ चीज़ें जिनको हम सर्किट बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, हम उनको ये भी बोल सकते हैं। तो इसी का दूसरा नाम हो गया है भाई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ऑलराइट। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं, ऑलराइट। तो देखो बैटरी, उसमें डेफिनेट सी बातें होती है, क्योंकि बैटरी को हमने क्या बोला है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, बैटरी को हमने क्या बोला है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली इफ हम अगर ऐसा करते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रखते हैं, ठीक है, तो बैटरी हुई एक कंपोनेंट जो कि हम अपने सर्किट में यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बैटरी तो पक्का सर्किट एलिमेंट में आ चुकी है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है कि कौन सर्किट एलिमेंट नहीं है। सेकंड पे बात करते हैं, वोल्ट मीटर। आई टोल्ड यू वोल्ट मीटर क्या होता है। जिन बच्चों ने नहीं सुना हो तो मैं उन्हें बता दूं, वोल्ट मीटर एक्चुअली इज a device which measures potential difference across a wire or across a component, ठीक है, तो ये वो करता है। बेसिकली वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। मतलब आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज दैट, बिकॉज नेक्स्ट ऑप्शन वही है। तो देखो ये वोल्ट मीटर एक डिवाइस हुआ, ठीक है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और वो भी सर्किट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी एक सर्किट एलिमेंट है, ओके। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। थर्ड की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है सर्किट में, ठीक है। सो लेट मी टेल यू इन द क्लियर वर्ड्स दैट एक्चुअली में आपने एक बात सुनी है, प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, डेफिनेटली आप लोग बोलोगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे पानी फ्लो करता है, ठीक है, अगर एक स्ट्रेट वायर है और वो ज़मीन पे रखा हुआ है और आपने क्या किया है उसको, लेट्स से आप क्या करते हैं, मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं तुम्हें एक सिचुएशन दे रही हूँ, बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है, मैं कहाँ बताऊँ, यहाँ बता देती हूँ। देखो ये है एक स्विमिंग पूल, ठीक है, ये एक स्विमिंग पूल है, यहाँ पूरा पानी 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 है, यहाँ पर बहुत ही कम पानी है, ठीक है। मैं तुम्हें बात बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना है तुम लोग को। देखो ये दो स्विमिंग पूल्स हैं जो कि डिफरेंट है, ठीक है, बीच में एक रैंप है, कोई भी इस पे वॉक कर सकता है। दीज आर टू डिफरेंट स्विमिंग पूल्स, ठीक है। अब देखो एक स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है और दूसरे वाले स्विमिंग पूल में बहुत थोड़ा सा पानी है, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम एक स्विमिंग पूल से दूसरे स्विमिंग पूल में सिर्फ एक पानी की पाइप, खाली पानी की पाइप जो होती है जिसके अंदर से पानी फ्लो करता हुआ जाता है, राइट, क्या आप उसको यूज करके पानी को एक स्विमिंग पूल से दूसरे स्विमिंग पूल में जा सकते हो, लेके जा सकते हो? क्या नहीं हो जा सकते, क्योंकि सिंपली तो ऐसा नहीं होगा,
यू हैव टू क्रिएट अ प्रेशर, ठीक है। तुम जब जब प्रेशर को लगाओगे यहाँ पे, तब क्या होगा, पानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है, जो करंट होता है, राइट, तो ये जो करंट होता है जो वायर के अंदर से फ्लो होता है वो नॉर्मली फ्लो नहीं होता है, एक्चुअली वहां पर एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, एंड दैट इलेक्ट्रिक प्रेशर इज प्रोवाइडेड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट, जो सेल होता है ना, सेल जो बैटरी होती है जिसको हम बोलते हैं दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Why is that source of electric current? Because वही सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रोवाइड करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारता है कि जाओ तुम, तब वो जाके पूरे वन एंड से लेके फ्लो होते हुए दूसरे एंड पे जाते हैं। ऑलराइट, दैट इज द मेन थिंग। ऑलराइट, ये चीज आपको समझनी थी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इज द इलेक्ट्रिक प्रेशर जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। ऑलराइट, बट दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट, ये कोई कॉम्पोनेंट नहीं है, ये कोई सर्किट एलिमेंट नहीं होता है। ऑलराइट, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यू कैन से दैट इट इज, let me write that again from the very starting. यहाँ पे लिखो this is electric pressure which flows the current in circuit। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ऑलराइट, दिस इज एक्चुअली नॉट अ कंपोनेंट बट समथिंग दैट ट्रिगर्स द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। ऑलराइट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ऑलराइट, सो बेसिकली दिस इज नॉट द सर्किट एलिमेंट, सो वी कैन से आवर सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ द फोर्थ वन, रेजिस्टर। व्हाट इज दैट रेजिस्टर? Resistor is a device from which we can choose any resistance। ठीक है, it is a device from which we can we can choose resistance। So basically it is a device, that means circuit में इसको भी as an element हम use कर सकते हैं, right? तो that is also an circuit element। तो basically battery, voltmeter, resistor, these three are the circuit elements, and this potential difference is not a circuit element but it is a reason, or you can say it is something that triggers the electric current। alright, so note this down। alright, तो कितना अच्छा हम लोगों ने चीज़ें सीखी हैं आज, नहीं? वरना इसके बारे में आपको तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इजी है, कोई भी इसको कर लेगा, तो तुम लोग भी फटाफट से इसको करो। देखो, अ फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ अलॉय। आई टोल्ड यू फ्यूज वायर एक अलॉय का बना होता है, और वो अलॉय क्या नाइक्रोम होता है, क्या टिन लेड होता है, क्या मैंगनीज होता है, क्या कॉन्स्टेंटिन होता है, ये आपको बताना है। सो बेसिकली फ्यूज वायर एलॉय का बना होता है, और मैंने तुम्हें क्योंकि डायरेक्टली बता चुका है, इवन आई टोल्ड यू द परसेंट ऑल्सो। सो सी, टिन लेड का बना होता है, क्या बना होता है? फ्यूज वायर। ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ एन एलॉय, दैट मीन्स उसके अंदर टिन और लेड दोनों ही कुछ परसेंटेजेस में मिलाए जाते हैं, बिकॉज एलॉय इज व्हाट? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। ऑलराइट, तो उसी का फ्यूज वायर बना होता है। Alright, that's why we can say option B is the correct one. Now let's move on to the question number 4. Question number 4 देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, और ये बिल्कुल सिली क्वेश्चन है। This is actually the silly question you can ever get।
ठीक है, जो भी बच्चा स्मार्ट होगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। अभी देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स बल्ब विल ग्लो, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में बल्ब ग्लो करने वाला है, ठीक है, ये हमें बताना है। अब आप देखो वन बाय वन सभी को जज करो, व्हाट इज द बेसिक नीड जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई सर्किट में बल्ब ग्लो करेगा। पहली बात तो करंट फ्लो होना चाहिए, ये हमको बात पता है, तभी तो बल्ब ग्लो करेगा। करंट फ्लो होने के लिए एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, सही बात है कि नहीं बात है? तो देखो रिक्वायरमेंट्स क्या होने चाहिए, रिक्वायरमेंट्स हमारे ये होने चाहिए कि भाई करंट शुड फ्लो, अगर करंट फ्लो करेगा तो बल्ब भी ग्लो करेगा, राइट? अब बल्ब को ग्लो करने के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, क्लोज्ड पाथ, ठीक है, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। अगर क्लोज्ड पाथ हमें मिल गया, अगर क्लोज्ड पाथ हमें मिल गया तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि भाई बैटरी है, क्लोज्ड पाथ है, तो मतलब अपना काम तो हो गया, बल्ब जलेगा पक्का, ठीक है। तो हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी है, so we have the source, we have the closed path, we have it made up of conductors and there should be the current। अगर ये conditions fulfill हो गई हैं that means bulb will glow, ठीक है। तो हम one by one सभी को check करते हैं। फर्स्ट वाले में आप देखो the switch is actually on, as you can see this is connected, so switch is on, there is good combination, बढ़िया combination है, प्लस माइनस, तो भाई ये तो जलेगा, सभी रिक्वायरमेंट्स फ्लो मतलब फुलफिल हो रही हैं, राइट। सेकेंड वाले में देखते हैं, सेकेंड वाले में कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, प्लस माइनस, बट यहाँ पे क्लोज भी है, ठीक है, बट यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा जो है सर्किट ओपन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सर्किट ओपन हो गया है दैट्स वाई हम लोग बोलेंगे इस जगह पे इस पूरे उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ड्यू टू विच बिकॉज देयर विल बी नो करंट, तो ये हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड वाले में एक ही स्विच है और वो ही कैसा है, ओपन है, दैट्स वाई ये जो स्विच है वो ऑफ स्टेट में है, ऑफ स्टेट में है तो इसका मतलब ये भी नहीं जलने वाला है। फोर्थ की बात करते हैं, बेचारे में ये भी जो है ओपन स्विच है, दैट मीन्स ये ऑफ स्विच है, सो करंट विल नॉट फ्लो, सो बस एक ही कंडीशन है जिसमें हमारा करंट फ्लो करेगा। सो देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स जिसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर सकता है। एक्चुअली नंबर वन, करंट शुड फ्लो, पहली बात तो ग्लो करेगा बल्ब, वो क्यों, क्योंकि करंट फ्लो करेगा। सेकेंड थिंग आप देख सकते हो देयर शुड बी द क्लोज पाथ। थर्ड आप देख सकते हो देयर शुड बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो सोर्स है वो भी सही कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, ऑलराइट। So that's why we can say option A is the correct one here. Now let's move on to the next question, that is question number 5। और क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हो सकता है किन्हीं बच्चों को आ जाए, किन्हीं बच्चों को नहीं आए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में नहीं देखा था। सो दिस इज द न्यू क्वेश्चन एंड यू विल बी गेटिंग न्यू नॉलेज टुडे इटसेल्फ, ठीक है। तो देखो मार्किंग ऑन अ बल्ब इज 60 वॉट टू 20 वोल्ट, इसको ध्यान से देखना सभी बच्चे, ठीक है। वॉट डज इट सिग्निफाई, अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम कभी गलती से क्या कभी तुम इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदने गए हो, जब आप इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदते हो तो आप बोलते हो शॉपकीपर को कि 60 वॉट का बल्ब देना, 20 वॉट का बल्ब देना, 10 वॉट का बल्ब देना, व्हाट इज दैट। जब हम ऐसा बोलते हैं एक्चुअली में हम बल्ब की पावर को बता रहे होते हैं, ऑलराइट। सो देयर हैज टू बी समथिंग जिससे हम बल्ब को जज करें, ठीक है। मतलब बल्ब कई टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे बल्ब भी होते हैं जो कम रोशनी देते हैं, कुछ ऐसे बल्ब होते हैं जो ज़्यादा रोशनी देते हैं, ऑलराइट। तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग बल्ब्स को खरीदते हैं, राइट, दैट इज द मेन थिंग। बल्ब की पावर डिफरेंट होती है, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो बताया हुआ है 60 वॉट, जब कभी भी तुम 60 वॉट बोलते हो, 10 वॉट बोलते हो, 100 वॉट बोलते हो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ द बल्ब, ऑलराइट। दिस रिप्रेजेंट्स पावर ऑफ बल्ब,
ऑलराइट, एंड डू यू नो दैट कि ये जो 60 वॉट बोला जा रहा है, इसका मतलब ये जो 60 वॉट का बल्ब है वो 60 जूल्स का एनर्जी 1 सेकेंड के अंदर यूज करने वाला है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, द बल्ब ऑफ 60 वॉट will use 60 joules of energy in 1 second। तो ये जो 60 वॉट लिखा हुआ है दैट्स कैपिटल W। कैपिटल W का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वॉट, ठीक है। ये जो वॉट है एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ द बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पर जब कभी भी आप 60 वॉट, 10 वॉट, 100 वॉट बोलते हो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ द बल्ब। और जो पावर होता है एक्चुअली में, इसका मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 60 वॉट बोला गया है, तो 60 वॉट इज द पावर ऑफ द बल्ब, बट 60 वॉट का मतलब है कि 60 जूल्स की एनर्जी 1 सेकेंड में वो खा जाता है, कंज्यूम कर लेता है, ऑलराइट। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका पावर लेट्स से 110 वोल्ट होता है, वॉट होता है, तो अगर 110 वॉट होगा तो इसका मतलब 110 जूल्स को वो 1 सेकेंड में, उस इतनी एनर्जी को 1 सेकेंड के अंदर वो कंज्यूम कर लेगा, ऑलराइट। दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। अब आते हैं 220 वोल्ट। तो देखो बेटा, 220 वोल्ट का मतलब होता है कि 220 वोल्ट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी देयर, ठीक है। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जब ये काम करने वाला है। इसका मतलब अगर तुम किसी एक बल्ब के लिए बोल रहे हो 60 वॉट 220 वोल्ट, ठीक है, 60 वॉट और 220 वोल्ट, तो इसका मतलब ये वाला जो बल्ब है वो 60 जूल्स की एनर्जी 1 सेकेंड में यूज करने वाला है, और ये वाला बल्ब जो है वो 220 वोल्ट पर काम करने वाला है, ऑलराइट। दैट इज व्हाट इट सिग्निफाइज, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये ऑप्शंस देखते हैं। द बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट्स, बिल्कुल सही, 220 वोल्ट्स के अक्रॉस हम उसको कनेक्ट करने वाले हैं। 60 जूल्स ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम फॉर एवरी सेकेंड, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। 220 वोल्ट मतलब कि भाई 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर हमें इसे यूज करेंगे, ठीक है, तभी यूज हो पाएगा, ठीक है। अभी देखो, द बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट्स, ठीक है। 60 जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन एवरी मिनट, गलत हो गया, मिनट से यहाँ पे गलत हो गया, बिकॉज पावर का मतलब हुआ कि भाई 60 वॉट इन 1 सेकेंड, ऑलराइट, दैट इज द नीड थिंग। सी ऑप्शन देखो, 60 एम्पियर ऑफ करंट विल फ्लो इन द बल्ब, no, we are talking about the power, not the current. 220 ampere of current will flow in the bulb, no, not at all. You need to know what means power, volt means potential difference. So जब कभी भी आपको वोल्ट आता है तो मतलब वो डिवाइस उस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्टेड होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जब कभी भी तुम्हें वॉट मिलता है तो इसका मतलब उतना पावर, उतना जूल्स पर सेकेंड यूज होना चाहिए, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। फटाफट से इसे नोट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारी। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ चुके हैं। लेट्स सी व्हाट यू थिंक ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला मैच द 2 कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। आपको मैच करना है फ्रॉम दीज 2 कॉलम्स। पहले कॉलम में बोला जा रहा है, कुछ बड़े बड़े सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और सेकंड कॉलम में कुछ छोटे छोटे चीज़ें बताई हुई हैं, CFL, नाइक्रो, मीका, कॉयल, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या क्या हो सकता है। अब हमें देखना है हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली वी नीड टू नो द ट्रिक, ठीक है। तो देखो, अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, a bad conductor of electricity but good conductor of heat, do you know that? all right, if you do not know that, कुछ भी मत करो, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, a wire twisted many times in form of circles, what is that? a wire twisted many times in form of circle, क्या उसमें से कुछ हमें पता चल सकता है? yes, coil,
वाई आर ट्विस्टेड, ट्विस्ट कर रहे हैं many times in form of circles की फॉर्म में, तो what we made a coil, right? तो B, अब हमें ये पता चल गया है कि भाई B का तो फोर्थ है, ठीक है, B का क्या है, फोर्थ है, मुझे ये पता चल गया है, मुझे पहला नहीं आया है, B का फोर्थ पता चल गया है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं B पे ध्यान दूंगी और मैं ऑप्शंस पे देखूंगी, B का थर्ड बताया हुआ है यहाँ पे, तो मतलब A ऑप्शन अपना गलत हो गया, कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शंस, B का फोर्थ इसने बोला गया है, ये सही हो सकता है, बी का सेकेंड इसमें बोला गया है, ऑप्शन बी भी आउट ऑफ द रेस, ऑलराइट, डी बोला गया है बी का फोर्थ, ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द अदर थिंग्स। स्मार्ट इको फ्रेंडली बल्ब, डू वी नो दैट? नाइक्रोम, मीका एंड CFL, वी नो द CFL, दैट्स द इको फ्रेंडली बल्ब, राइट? तो सी का हो गया है फर्स्ट, सी का हो गया है फर्स्ट। अब चेक करो, सी का फर्स्ट, सी ऑप्शन में बताया हुआ है, तो मतलब ये सही हो सकता है, सी का फर्स्ट, तो डी भी सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एन एलॉय whose टेम्परेचर कैन राइज अप टू 900 डिग्री सेल्सियस एंड यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट, कौन है वो इनमें से? वी नो दैट इज द नाइक्रोम, क्योंकि हमें ये बात पता है, टंगस्टन, नाइक्रोम, ऑलराइट, और ये जो चीजें होती हैं ये जनरली एज एन हीटिंग एलिमेंट यूज होती है, राइट? सो वी कैन से दैट कि डी वाला जो है वो सेकंड से मैच हो गया है। जैसे ही डी वाला सेकंड से मैच हो गया तो हम देखेंगे सी में डी सेकंड है, तो मतलब ये अपना हो गया है करेक्ट, और डी में देखो थर्ड है, तो इसका मतलब ये हो गया है गलत, ऑलराइट? तो दैट्स व्हाई वी कैन से सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और अब हमें एक और बात पता चली है, दैट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक्चुअली इज मीका। सो बेसिकली मीका इज द वन जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ऑलराइट? दैट इज द न्यू नॉलेज यू कैन गेट हियर, ऑलराइट? तो दैट्स हाउ यू शुड डू क्वेश्चन। आप एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, जितने ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं आप उनको करो, ठीक है? दैट कैन डेफिनेटली लीड अप यू टू द करेक्ट आंसर, ठीक है? फटाफट से देखो इसे, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ऑब्जर्व द गिवन सर्किट डायग्राम्स एक्स एंड वाई। तो ये दो सर्किट डायग्राम्स है, एक एक्स है एक वाई है, एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो पहला क्या बोला है, सर्किट वाई इज अ सीरीज सर्किट, सर्किट वाई इज अ सीरीज सर्किट। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं सीरीज का मतलब क्या होता है। सीरीज का मतलब होता है कि बल्ब, बैटरी और बाकी जो भी चीजें ऐड करनी है वो वन बाय वन लगे हुए हैं, ठीक है? दैट इज द सीरीज। मतलब करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता मिल रहा है, ठीक है? करंट अगर एक बार बैटरी से निकल गया तो मतलब उसको एक ही रास्ता मिलेगा जाने को, और वो नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। दैट इज सीरीज, ऑलराइट? तो हम यहाँ सीरीज के लिए बोल सकते हैं कि भाई 1 बाय 1 कनेक्टेड होता है, ऑलराइट? और जो दूसरा कॉम्बिनेशन होता है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसका मतलब यहाँ पे करंट को दो रास्ते मिलते हैं जाने के लिए। करंट पॉजिटिव टर्मिनल में से निकला और जब वो बाहर निकला तब उसे दो रास्ते मिल गए जाने के लिए। अगर उसे ऐसे दो रास्ते मिल जाते हैं, अगर करंट को दो रास्ते मिल जाते हैं, दैट मीन्स वो सर्किट कौन सा है, पैरेलल सर्किट है, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं मल्टीपल पाथ्स, और यू कैन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? तो अब तुम मुझे खुद से बताओ कि यहाँ से देखो पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकलेगा, एक ही रास्ता मिलेगा जाने के लिए और वो नेगेटिव टर्मिनल में घुस जाएगा। इसका मतलब एक्स जो है वो सीरीज है, ऑलराइट? तो मतलब ये तो हमारा बन गया सीरीज। और यहाँ देखो पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट यहाँ तक पहुंचा, जैसे ही यहाँ तक करंट पहुंचा अब करंट को दो रास्ते मिले, या तो वो इस 3 वाले बल्ब में जा सकता है या वो इस 4 वाले बल्ब में जा सकता है, और या फिर वो टूट के दोनों में थोड़ा थोड़ा जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे उसको दो रास्ते मिल गए, इसी वजह से ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो यहाँ पे जो बात बोली गई है सर्किट वाई इज अ सीरीज सर्किट, ये गलत बोली गई है क्योंकि हमने चेक कर लिया है दैट इज अ पैरेलल वन, ऑलराइट? सेकेंड ऑप्शन देखो, बल्ब 2 इन द सर्किट एक्स, सर्किट एक्स के अंदर बल्ब 2 विल ग्लो
even when the bulb 1 is fused and switch S1 in close। तो भाई S1 को तुम कर दो क्लोज, ठीक है, मानो तुमने यहाँ पे S1 को क्लोज कर दिया तो मतलब करंट फ्लो होने लग जाएगा, लेकिन बल्ब 1 यहाँ फ्यूज है, यहाँ पर फ्यूज हो गया, मतलब सर्किट में जो करंट जाना था, करंट का रास्ता एक तरीके से बंद हो गया, रुक गया है। अब ये कैसा सर्किट बन गया है? ओपन सर्किट बन गया है। जब हम स्विच 1 को क्लोज कर देंगे बट जो बल्ब 1 है वो फ्यूज हो गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये जो बल्ब है सेकेंड वाला वो ग्लो नहीं करेगा, तो हमारा ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड वन, इन सर्किट Y बल्ब 3 विल ग्लो इफ ओनली स्विच S2 इज क्लोज्ड। तो इसमें बोला गया है कि अगर तुम क्या करो, स्विच S2 को क्लोज कर दो, ठीक है, तो क्या होगा? बल्ब 3 ग्लो करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर स्विच को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, लेट्स से दिस S2 इज क्लोज्ड। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से करंट बाहर आएगा, दो जगह बढ़ जाएगा, लेकिन ये ओपन है तो करंट वहां नहीं जाएगा। करंट कहाँ जाएगा? इस 3 में से होते हुए जाएगा, क्योंकि ये हम क्लोज कर देंगे, जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल सकता है कि अगर हमने किसी दूसरे रास्ते को इस तरीके से बना दिया है कि करंट वहां नहीं जाए, तो क्या होगा? इससे इस 3 वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि 4 में तो करंट जाएगा ही नहीं, रास्ता आगे टूट गया है, तो करंट वहां फ्लो नहीं करेगा। करंट तो वहां जाएगा जहां पे रास्ता क्लोज है, और करंट का रास्ता कहाँ क्लोज है? 3 के बाद S2 वाले उसमें, है ना, तो क्लोज हो गया। तो यू कैन से यस 3 विल ग्लो, ठीक है, बल्ब जो है 3 ग्लो करेगा अगर स्विच 2 क्लोज कर दिया जाए तो, ठीक है। 4 देखो, बोथ X एंड Y आर पैरेलल सर्किट्स, तो ये गलत बात है क्योंकि हमें पता है कि भाई X वाला तो सीरीज है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन यूज, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब फटाफट से इन सीरीज और पैरेलल को नोट कर लो। चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर हम लोग जो हैं देख रहे हैं एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर द गिवन सर्किट। ये आपको सर्किट गिवन किया हुआ है और इसके लिए बोला गया है कि इन चारों कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली इन द सर्किट। The battery is not connected properly in the circuit. Let's see. माइनस प्लस प्लस माइनस तो गलत तो जुड़ी है, बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सही बोल रहा है ना कि भाई यहाँ पे करेक्ट नहीं है, कनेक्टेड नहीं है अच्छे से, तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया है, ठीक है। When compass is kept near to the circuit, it will not show any deflection। क्या ये बात सही है? जब कंपास को हम इसके पास रखेंगे, इस सर्किट के पास रखेंगे, तो इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ये डिफ्लेक्शन तो तब आएगा जब करंट फ्लो होगा, क्योंकि अब इसमें करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो बिल्कुल सच्ची बात है कि अगर पास ले जाओ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, बिकॉज अभी सर्किट के अंदर करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो भाई ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड देखो, द गिवन सर्किट इज इनकम्प्लीट बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। कैसे सही बात है? कैसे कैसे कैसे? वो सही बात ऐसे है कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स नहीं है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स मतलब बैटरी, और बैटरी सही कनेक्टेड नहीं है। तो उसके केस में हम क्या बोलने वाले हैं कि भाई इसके अंदर क्योंकि बैटरी का सोर्स नहीं है, और इसी वजह से वी कैन से कि इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होगा ही नहीं, है ना। और अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, दैट मीन्स वी कैन से कि ये तो इनकम्प्लीट है। सही बात है, इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो नहीं होगा तो हमारे लिए तो वो सर्किट इनकम्प्लीट होगा। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई सर्किट इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, ड्यू टू बैटरी इन दिस सर्किट इलेक्ट्रिक वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। तो क्या ऐसा सच्ची बात है कि भाई इस बैटरी की वजह से क्या तुम्हें कोई
मैग्नेट मिलने वाला, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है क्या? इलेक्ट्रिक वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाला है? वो तो वो तब करता ना जब वहां पर कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स होता, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होता, राइट? ड्यू टू बैटरी इन द सर्किट, बैटरी तो है बट कनेक्टेड नहीं है, सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस बैटरी की वजह से ऐसा नहीं होगा, अगर ये बैटरी सही कनेक्टेड होती तो जरूर हो सकता था। दैट्स व्हाई दिस वन, दिस डी इज द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट एंड दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नोट दिस डाउन। Now let's move on to the question number 9 and question number 9 तुम्हारे सामने ये रहा, ठीक है? इसको सॉल्व करने के लिए भी तुम्हें जो है बहुत ही अच्छी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग और अपना क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इन विच सर्किट द बल्ब विल ग्लो ब्राइटली, किसके अंदर बल्ब जो है वो ब्राइटली ग्लो करेगा? ऑलराइट, चलो देखो, इन सर्किट P ओनली, P ये रहा, in circuit Q only, Q ये रहा, in both circuits P and Q the bulb will glow with equal brightness, data insufficient। ये हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो अब यहाँ देखो, लेट्स सी P और Q में क्या डिफरेंस है, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है? की ऑन है, ठीक है? और यहाँ पे दो बल्ब जो हैं वो पैरेलल में ज्वाइन किए हुए हैं। इसका मतलब जितना भी करंट जाएगा, जितना भी करंट फ्लो होने वाला है, वो इन दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? सो जितना भी करंट जाएगा तो वो इन दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर देखो 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। तो आई टोल्ड यू कि अगर तीन बैटरी सेम उसकी कनेक्टेड है, सिमिलर बैटरी सिमिलर सेल्स कनेक्टेड है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितना होता है? एडिशन ऑफ दैम। तो टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा? 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, दैट मीन्स 1.5 वोल्ट। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम हो गया ना, P में भी 1.5 वोल्ट है, Q में भी बिल्कुल सेम टू सेम 5 वोल्ट है, ठीक है? तो मतलब इनका जो ये सोर्स है 5 वोल्ट 5 वोल्ट, तो वो बराबर है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, पॉजिटिव में से करंट जाएगा और अगेन यहाँ पे करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं और फिर दोनों सेम बल्ब हैं, तो दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशंस आर टोटली सिमिलर, ठीक है? दोनों बिल्कुल सिमिलर है। चाहे तुम इस तरीके से बल्ब को कनेक्ट करो, चाहे तुम इस तरीके से बल्ब को कनेक्ट करो, दे आर बोथ इन पैरेलल, ठीक है? करंट को अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो P और Q सर्किट है उनके अंदर बल्ब जो है वो इक्वल ब्राइटनेस से ग्लो करने वाला है, बिकॉज दोनों में सेम कंडीशंस हैं। ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है? नोट करो इसे फटाफट, देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? वो देखो, ये कहता है वो, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट a short circuit? So first let me tell you what is a short circuit, ठीक है? देखो, short circuit का मतलब क्या होता है? It happens when naked live wire comes in contact with neutral wire। ऑलराइट, तो देखो, जब कभी भी लाइव वायर, आई टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ वायर, ठीक है? लाइव एंड द न्यूट्रल वन, ठीक है? और तीसरा होता है अर्थिंग का वायर, ठीक है? सो देखो, जब कभी भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? उनका मेटालिक पार्ट जब आपस में कनेक्ट हो जाता है, नेकेड लाइव का मतलब क्या हुआ? नेकेड लाइव का मतलब है कि उसके ऊपर का इंसुलेशन हट गया है, ठीक है? नाउ मेटालिक पार्ट जो है आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं,
तब शॉर्ट सर्किट होता है और वो वहां पर क्या करता है, डिवाइसेस को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है बेसिकली, दैट इज डेंजरस। ऑलराइट, सो यहाँ पर मेन चीज क्या है वो ये कि जब कभी भी ऐसा होता है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का मेटालिक पार्ट जब कनेक्ट हो जाए, जब किसी तरीके से मिल जाए, ठीक है, तब हम बोलते हैं दैट देयर इज शॉर्ट सर्किट एंड दैट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। जब भी वो मिलेंगे ना तो वहां पे कुछ ना कुछ लिटिल ब्लास्ट एंड समथिंग कुछ होगा, दैट्स व्हाई इट इज डेंजरस। स्पार्किंग भी हो सकती है और डिवाइसेस भी खराब हो सकते हैं। ऑलराइट, और अगर तुम यहाँ बल्ब की बात करो, जैसे हम लोग के इस सर्किट्स में तो सिंपल बल्ब्स हैं, है ना, तो इस केस में अगर आप बात करते हो तो देखो, इफ वी कनेक्ट अ वायर, if we connect a wire across a bulb, ठीक है, जब हम ऐसा कर दें, जब हम किसी बल्ब के अक्रॉस वायर को कनेक्ट कर दें तो भी वो क्या बन जाता है, शॉर्ट सर्किट बन जाता है। ठीक है, दैट मीन्स चूज एनी ऑप्शन विच इज हैविंग द कंडीशंस हियर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वायर्स तो नहीं है, लाइव एंड न्यूट्रल वन, तो इन दोनों का कनेक्शन यहाँ नहीं बता सकते, राइट, पर हम ऐसा देख सकते हैं क्या इस बल्ब के अक्रॉस कोई वायर है, नहीं है ना, क्योंकि देखो यहाँ से पॉजिटिव वाला टर्मिनल में से करंट जाएगा 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 जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, तो यहाँ पे इस बल्ब के अक्रॉस कोई नहीं है। अक्रॉस का मतलब है पैरेलल में कनेक्शन, ठीक है, तो मतलब बल्ब के पैरेलल कनेक्शन में एक वायर होना चाहिए, है ना, तो हमारा ऑप्शन बी तो कैंसिल हो गया। सेकेंड वाले में देखते हैं, देखो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है करंट, यहाँ पे 2 उसे मिल गए हैं रास्ते, एक बिल्कुल सीधा वायर है, एक बल्ब है, तो देखो इस बल्ब के पैरेलल में देयर इज अ वायर, है ना, देयर इज अ वायर कनेक्टेड एंड दैट मीन्स कि ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है। ऑलराइट, तो दिस इज अ कंडीशन विच इज शोइंग द शॉर्ट सर्किट। ठीक है, थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में पॉजिटिव से निकला है बल्ब, बट उसके बाद क्या हो रहा है, बल्ब के अक्रॉस तो कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, राइट, एंड ऑल्सो यहाँ तो सिंपल डिवाइसेस हैं, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है, तो करंट जाएगा 2 में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आकर मिलकर फिर वापस नेगेटिव में चला जाएगा। दिस इज नॉट अ कंडीशन फॉर शॉर्ट सर्किट, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, बल्ब के अक्रॉस एज यू कैन सी देयर इज रेजिस्टर बट देयर इज नो एनी वायर एंड दैट्स व्हाई वी कैन से डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नोट दिस डाउन, दिस इज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। All right, now let's move on to the next question, question number 11. Question number 11 क्या कह रहा है, let's see that. Copper wires are used as connecting wires because copper has very high melting point, copper wires are very thick wires, copper wires offers a lower resistance, none of these. So basically अगर ये जो साइज की बात कर रहे हैं, थिक वायर्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज जो वायर्स होते हैं वो अलग अलग मटेरियल, अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं। ऑलराइट, एंड एज यू ऑल नो कि जो एक वायर होता है वो इतना मोटा नहीं होता, तो वो थिक नहीं होता। ऑलराइट, तो बेसिकली दैट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट तो नहीं है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का हम कुछ नहीं कह सकते, वो मेल्ट हो जाता है, इट इज नॉट अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब टंगस्टन जितना हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, so basically it is not in correct option also. This one, the copper wire offers a lower resistance is the correct one because हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा connecting wire चाहिए जिसके अंदर से करंट जा सके easily, right, और हमें करंट को भेजना है, that means इसके अंदर का जो एक फोर्स है जो अपोज करता है करंट को वो कम होना चाहिए। अगर वो अपोजिशन वाला जो चीज़ है वो कम हो जाती है तभी तो करंट अच्छे से फ्लो कर पाएगा। That's why there should be low resistance, अगर वो कम होगा तभी करंट अच्छे से फ्लो हो पाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो टंगस्टन वायर होता है उसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है तभी वो ग्लो करता है। ठीक है, बट हमें चाहिए एक ऐसा वायर कनेक्शन के लिए जो कि लोअर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता हो और वो कॉपर
बहुत अच्छा मटेरियल है उस चीज़ के लिए. ऑलराइट, सो दैट्स वाई कॉपर इज दी lower resistance wire, that's why it is used as a connecting wire. Now let's move on to the next question, question number 12. तो देखो यहाँ पर question number 12 क्या बताता है. Question number 12 क्या कहता है, 3 bulbs A, B and C are connected as shown in figure. तो देखो ये रहा bulb A, ये रहा B, ये रहा C. The bulb B and C are identical. If the bulb C is fused, then अब देखो अगर बल्ब C को हमने क्या किया, फ्यूज कर दिया, तो करंट यहाँ तो जाएगा ही नहीं, है ना. करंट इस C में से तो नहीं जाएगा क्योंकि वो तो फ्यूज हो गया. लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस. ब्राइटनेस ऑफ बोथ बल्ब्स A एंड B विल इंक्रीज, दोनों बल्ब की बढ़ जाएगी ब्राइटनेस. ब्राइटनेस ऑफ बोथ बल्ब्स A एंड B विल डिक्रीज, दोनों की कम हो जाएगी. ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब A डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ द बल्ब B इंक्रीजेज. देखो पहले क्या हो रहा था, जब ये C वाला बल्ब जो है शॉर्ट सर्किट नहीं था, मतलब फ्यूज नहीं था, ठीक है, नॉट शॉर्ट सर्किट, फ्यूज नहीं था, तब क्या होता था, करंट यहाँ से फ्लो होता था, ठीक है, वो यहाँ A में से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पर आने के बाद उसे B और C दोनों में जाना था, तो करंट हाफ हो जाएगा क्योंकि बोथ आर आइडेंटिकल. अब क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही हमने C को फ्यूज किया वैसे ही B के अंदर पूरा पूरा करंट जाने लगा. जहां पहले आधा करंट जा रहा था अब पूरा करंट जा रहा है. दैट मीन्स कि इसका जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाएगा क्योंकि पूरा करंट जा रहा है, ठीक है. सो B का ब्राइटनेस तो बढ़ जाएगा, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन A का ब्राइटनेस कम हो जाएगा. क्यों कम हो जाएगा, बिकॉज टोटल करंट, जो टोटल करंट है इस वायर का वो कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल का मतलब दैट विल डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस था इन तीनों वायर का दैट विल एक्चुअली इंक्रीज, राइट. तो इस केस में क्योंकि अब सीरीज में बन जाएंगे, राइट, तो दैट वुड प्रोवाइड दी हाई रेजिस्टेंस, दैट्स वाई करंट विल इंक्रीज, विल डिक्रीज इन दी ए बल्ब. ऑलराइट, दैट्स वाई, क्योंकि अब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस के लिए जो हम करंट देख रहे थे, दैट वाई इसके अंदर अब क्या होगा, करंट कम जाने लगेगा, ड्यू टू विच इट्स यू कैन से its brightness will decrease because of low current. And B में क्या होगा, potential difference will be greater, right. That's why उसका जो you can say bulb B का जो brightness है वो increase होगा और A का brightness will decrease, and that's why we can say option C is the correct one. Alright, so ये वाले जो questions हम लोगों ने देखे हैं, these type of questions appear in the competitive level examinations, and you should definitely try them out again and again so that you become perfect in this. Also absorb the extra knowledge given in these questions so that will be benefited all, right. तो जो भी questions आपको मिलने वाले हैं उनके लिए knowledge आपको इकट्ठी करनी है. Alright, that is the main thing of doing these questions here, right. So that is it. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Also remember to watch out the next lectures videos also. Alright, so thank you so much.